Today we are to talk about the business manager and fiscal league monetary policy. Before this, we have talked about the costs, we have talked about the market structure, competition, oligopoly, competitive, etc. How these situations affect the decision making by a firm. But today we are to talk about the government policies. This fiscal and monetary policies have direct impact on the performance of any firm. Therefore, the business managers need to be familiar, remain familiar, well informed about the government policies and take necessary actions so that they can make their business organizations better off and resource. Now, the first question is, what is fiscal policy? Fiscal policy refers to the government spending and tax collection to influence the macroeconomic conditions of the country, economic growth, aggregate demand, aggregate supply, inflation, employment, etc. In other words, fiscal policy is a mean by which a government adjusts its spending level and tax rates to monitor and influence economic conditions in a country. So first, government is to monitor what is happening. Is government satisfied with the current economic conditions, or government wants some alteration? If alteration is required, so this fiscal policy helps to achieve that. Overall objectives of this fiscal policy, overall objectives are economic stability, a stabilization function. Because if there is no government, private organizations, independent, hiding facts from each other, and if you have studied macroeconomics, we are confronted with business fluctuations. Sometimes we get recession, the other time we have boom conditions, and we have unemployment, we have stagflation, etc. So through this fiscal policy, we want to keep our economic conditions, our economic growth stable. Then resource allocation. Resource allocation, notice private firms are business profit conscious. They go for that, what is bringing profit for them. But society needs some other things as well, less rewarding. So this government will go for resource allocation in the interest of the society. So it will alter and influence the allocation of resources, not all for production, for development as well, for research and technology development, etc. Then income distribution. We have studied monopoly, we have studied duopoly, and in duopoly we say they join hands and act as a monopoly. When there is a monopoly, they exploit the masses. They exploit masses and charge high prices. So as a result, concentration of income in the hands of monopolists or sound lobbies. तो वो अमीर हो जाती हैं, दूसरे करीब अवाम नास जो हैं वो deprived, exploited. So this fiscal policy will help in smoothing the income distribution in the society. Types of fiscal policy, there can be expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy or loose fiscal policy seeks to encourage economic growth.
deficit budgets are made either by cutting taxes or by enhancing the government spending. डेफिसिट बजट क्या है कि जिसमें अब गवर्नमेंट बजट बनाती है कि जून में यकम जुलाई टू 30 जून ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो गवर्नमेंट हर साल हर गवर्नमेंट नया बजट बनाती है। नए बजट में क्या है, एक तरफ से कलेक्शन है, एक तरफ से रेवेन्यू रिसीट्स कलेक्शन है, टैक्स लगाया जाए, कोई फीस है, ये पासपोर्ट फीस, ये टेलीविजन फीस, ये ये आर्म्स लाइसेंस फी, तो मुख्तलिफ फीस को एडजस्ट किया जाता है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट प्लान करती है टू स्पेंड। अब अगर आपकी स्पेंडिंग, इंटेंडेड स्पेंडिंग is greater than the expected revenue, it means it is deficit budget. आप इकट्ठा नहीं कर रहे, you are spending, you want to make more and more resources available with the society. आप activities generate करना चाहते हैं ताकि employment, you want to give an injection in the economy so that employment is generated, etc. अब ये एक्सपेंशनरी है, डेफिसिट बजट है। अब जब डेफिसिट बजट है तो वो डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा, बारहवीं, या तो बारहवीं की जाएगी, बाहर से बारहवीं की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, मुस्लिम जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, या इंटरनल सोर्सेस से बारहवीं, या फिर गवर्नमेंट अपने एसेट्स, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर रिसोर्सेज जनरेट करती है और सरप्लस जो डेफिसिट बजट है उसको फिल करने की कोशिश करती है। और दूसरी टाइप है कंटेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर सरप्लस बजट, इसके ऊपर टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते हैं, नए टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते हैं और रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन स्पेंडिंग कम। सरप्लस रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द इंटेंडेड स्पेंडिंग, इट reduces the total amount of money available with business firms and consumers for spending. Tools of fiscal policy. अब ये गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्शन है और स्पेंडिंग है उसके तरीके क्या हैं, क्या उनकी मद्दें हैं। एडजस्टमेंट इन टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स जो आप अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। प्रॉपर्टी आपकी जमीन है, आपके फ्लैट हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, आप कुछ चीज इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें उस पर गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स है कि एज द इनकम लेवल इंक्रीजेस tax burden also increases. Progressive, as the income level goes up, higher and higher proportion of the incremental income is collected as tax. For instance, हमारे मुल्क के अंदर अगर हम कहें कि 6,50,000 महाना इनकम हो अगर आम फैमिली की, आम आदमी की, तो नो टैक्स, तो वो टैक्स, इट मीन नो टैक्स। लेकिन अगर उसकी आमदन 6 लाख सालाना की बजाय 9 लाख सालाना हो जाए तो 7 से 9 लाख पर उससे 10% या 15% टैक्स ले लिया जाए। लेकिन अगर उसकी आमदन 9 लाख से तजावज कर जाए, 12 लाख या 14 लाख हो जाए, तो उससे 15 की बजाय 9 से जो ऊपर इनकम है वहां पे 25% टैक्स। दैट इज व्हाट आई से
As the income level goes up, higher and higher proportion of the incremental income is collected as tax. तो ये प्रोग्रेसिव है. प्रोपोर्शनल टैक्स, जहां गवर्नमेंट कहे कि बस 5% ऑफ द इनकम, 5%, जिसकी 1000 आमदन है वो 50 रुपए, जिसकी लाख है वो 5000 रुपए. तो एज द इनकम गोज अप प्रोपोर्शनेटली, उसी निस्बत से टैक्स जो इम्पोज्ड है वो बढ़ता चला जाए. उसकी रेशियो वही रहेगी, वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी लेकिन सेम परसेंटेज. बट रिग्रेसिव टैक्स के लो इनकम वाले ज्यादा टैक्स पे करें, जबकि हायर इनकम वाले रिलेटिवली कम टैक्स पे कर रहे हैं. दिस इज वेरी अनडिजायर्ड टाइप ऑफ टैक्सेशन. तो जिसमें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जहां पे इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट is on the same person. For instance, किसी का की तनख्वाह है 2 लाख, तो उस पे इनकम टैक्स जो भी लगा तो उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है. वही आदमी मेल फीमेल जो अर्न कर रहा है, वहीं से उसका जो भी रेशो गवर्नमेंट ने तय की हुई हो उस हिसाब से उसका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा. सो इन इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट इज ऑन सेम. Whereas in case of indirect, आप किसी घी फैक्ट्री पे, कुकिंग ऑयल वाली फैक्ट्री पे टैक्स इंपोज करते हैं 50 रुपीज पर कंटेनर. तो आपने इंसिडेंट्स आपने रिकवरी कर ली उनकी प्रोडक्शन, वहां उनके कंटेनर गिनकर डब्बे गिने और उनसे टैक्स इकट्ठा कर दिया. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो जो कुकिंग ऑयल वाले वो अपने कंटेनर की कीमत 50 की बजाय 100 रुपया बढ़ा देते हैं. तो रिकवरी तो वो प्रोड्यूसर से है, लेकिन अल्टीमेट इम्पैक्ट उसका कंज्यूमर पे है. अल्टीमेट बर्दाश्त कंज्यूमर कर रहा है. तो ये टैक्सेस है. एडजस्टमेंट इन टैक्स रेट, टैक्स रिबेट्स, टैक्स फ्री जोन्स, टैक्स एग्जेम्पशंस. टैक्स रिबेट्स के आपके ऊपर ये टैक्स बनता था, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए ये नेकी का काम करें तो गवर्नमेंट उसको इंडिकेट करती है, बताती है फला सेक्टर में अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट करें, इतनी मालियत की आप एक्सपोर्ट करें तो आपको टैक्स रिबेट आपको वापस मिल जाएगा. फिर टैक्स फ्री जोन्स, आपके बैकवर्ड एरियाज, अंडर डेवलप्ड, जहां आप समझते हैं कि पॉवर्टी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट वहां पे कहती टैक्स फ्री. आप वहां पे लिविंग यूनिट लगाएं, आप सपीनल यूनिट लगाएं, वहां पे आपको 5 साल या 10 साल कोई टैक्स नहीं, आप टैक्स से मुस्तस्ना है. तो इस तरह का है. अगेन गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हैं कि लोग आए, लोग उसको फिर देखते हुए दे कैलकुलेट. अगर रायगढ़ में फैक्ट्री लगाएं, अगर शेखुपुर के करीब फैक्ट्री लगाएं, उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और अगर राजनपुर साइड पे जाके लगाएं तो उसकी क्या होगी. टैक्स फ्री जोन, तो वो कंपैरिजन करके अगेन बेनिफिट कॉस्ट रेशो हमने निकाली पहले, तो वो कंपैरिजन करने के बाद उसका, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं, तो फिर वो उसका डिसीजन कुछ भी नहीं होगा. प्रोविजन एंड विथड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे आप समझते हैं कि सोसाइटी को फायदा होगा, आपका प्रोडक्शन फंक्शन अप जाएगा, उसको आप पॉपुलराइज करने के लिए
आप प्रोड्यूसर को सब्सिडी देते हैं कि वो मशीनरी 10 लाख की है, आप कहते हैं 2 लाख गवर्नमेंट देगी, 2.5 लाख गवर्नमेंट देगी, तो लें, तो 7.5 लाख। इट मीन्स आपने आर्टिफिशियली उस मशीनरी की कीमत 7.5 लाख कर। अब वो जो बायर है, इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि वैसे लोग 10 की खरीदते थे, आपको वो 7.5 की मिल रही है, इज इट वर्थ टू बाय और नॉट? एडजस्टमेंट इन द प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स जो पब्लिक सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं, फॉर इंस्टेंस ये बिजली है, बापडा, और वो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो फेस्को है, वो लेस्को है, वो मेस्को है, वो डिफरेंट कंपनीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट मेनली इट इज बापडा। और जो बिजली पैदा हो रही है उसकी कीमत बढ़ाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू, अगर उस पे अगेन सब्सिडी दें तो रेवेन्यू नीचे जाएगा, अगर कीमत बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू ऊपर जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन तो पहले किसी दौर में नेशनलाइजेशन हुई, फिर डी नेशनलाइजेशन। अब पब्लिक सेक्टर कई दफा ये सोचती है गवर्नमेंट के पीआईए को, कई दफा बैंकों को किया गया, ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करके स्टील मिल की नजकारी का इशू था, तो वहां से ये पैसे पकड़ने की कोशिश करती गवर्नमेंट। सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स, लैंड, व्हीकल्स, डेवलप सेक्टर्स में बहुत सी गाड़ी किसी दौर में बहुत खरीदी गई, और नॉन रिपेयर रिमेंडिंग गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी रिपेयर पे उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत होने, उस नई गाड़ियां आ चुकी हैं, तो आप पहली गाड़ियां खड़ी उनको नीलाम कर दें। अगर सेल आउट करते हैं तो एक तो मजीद नुकसान, जो खड़ी जंग बन रहा था, जंग, तो उनको आपने मजीद स्पॉइलेज से बचा लिया, प्लस जो खड़ी थी नकारा, उनका कुछ ना कुछ आपने रिकवरी कर ली, एंड दैट रिकवरी कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ डैम्स, रोड्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। ये स्पेंडिंग के एलिमेंट है कि गवर्नमेंट डैम बनाना शुरू करे, गवर्नमेंट कोई पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन लगाए, या रोड्स, मोटरवे, ये बहुत सारे रिसोर्स मांगेंगे। अपग्रेडेशन एंड रनिंग एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, रूरल हेल्थ सेंटर को बेसिक हेल्थ सेंटर को आपने हॉस्पिटल अपग्रेड करना है, उसमें बेड्स की तादाद, उसमें डॉक्टर्स बढ़ाने हैं, स्कूल को, मिडिल को आपने सेकेंडरी को हाई स्कूल, और बहुत सारे सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी, या उसको कॉलेज का जब दर्जा देते हैं तो वहाँ लेबोरेटरीज, वहाँ लेक्चर रूम्स, वहाँ नया स्टाफ, उनकी जरूरत पड़ती है। तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिसोर्स इम्प्लीकेशन, प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स एंड कैश टू द पुअर। तो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। फिर ये लैपटॉप, उसके लिए भी फंड्स दरकार थे, कई सालों से ये लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, तो पैसे लगते हैं उस पर भी, तो कहीं से पैसे आएंगे तो फिर ये पैसे स्पेंड किए जाएंगे। फिर ये पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बिस, फिर ये मौजूदा गवर्नमेंट ने एहसास शुरू किया, तो अगेन शुगर ग्रुप को आप रिसोर्सेज, कैश ट्रांसफर करते हैं। ये थी फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी आपकी वजारत खजाना, आपका फाइनेंस मिनिस्टर चलाता है, ठीक है, वो बनाते हैं, वही चलाते हैं। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेजेस द साइज and growth rate of the money supply and in an economy. It is a powerful tool to regulate macroeconomic variables such as inflation, unemployment and currency exchange rate. तो मॉनेटरी, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, deals with money supply. It is formulated and implemented are executed
थ्रू द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। हर मुल्क में एक सेंट्रल बैंक होता है। ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये हबीब बैंक, ये मीजान बैंक, ये कमर्शियल बैंक्स हैं। कोई इंडस्ट्रियल बैंक है, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्व्स एज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन इज थ्रू सेंट्रल बैंक, और इन आवर केस it is through state bank. Objectives of monetary policy. Key objectives are stable currency exchange rate. Exchange rate डॉलर के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में stable exchange rate. Stimulate employment. Stimulate economic growth. Control inflation. Equilibrium in the balance of payment. Balance of trade होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रिडक्शन ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स, ये उसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी की टाइप्स डिस्कस की, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी टाइट और इट कैन बी लूज। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी envisages to curtail money in circulation. Money in circulation कम हो जाए. In other words, it will reduce money available with the consumers and the business firms. To bring contraction in money supply, interest rate and CRR, credit reserve ratio, ये जो बैंकें लोन्स एडवांस करती हैं तो उनके लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए। Both are increased, moreover, and an increased volume of bonds is sold out. तो bonds 10 साल के लिए bonds सेल किए जाएं कि लो भाई आप ये 10,000 का या 50,000 का बॉन्ड खरीदो, 5 साल में ये 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में इसकी वैल्यू इतनी बढ़ेगी। तो लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट उस पे देकर लोगों से करेंसी इकट्ठी कर ली जाती है। तो लोग बॉन्ड्स खरीद के रख लेते हैं कि भाई ये सेफ है, बाहर जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिस्क भी होगा, ठीक है, तो यहाँ रिस्क नहीं होगा, गवर्नमेंट का बॉन्ड लेके रख लिया, लेकिन आपके हाथों से गवर्नमेंट ने कैश इकट्ठा कर लिया। Loose monetary policy envisages increased money in circulation. In other words, loose monetary policy will make larger amount of money available with the consumers and business community for spending. For this purpose, the state bank will either decrease interest rate or lower down CRR, credit reserve ratio. It may still buy bonds, giving cash away to the public. तो ये जो 3 टूल्स हैं, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक में अडॉप्ट ऑल 3 साइमल्टेनियसली, या किसी एक पे या 2 पे इन्हासार कर ले, तो तीनों को इकट्ठे वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फिस्कल एंड मॉनेटरी, अब जैसे टैक्स फ्री जोन्स अगर हैं, या आपको गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिबेट्स या वेरी चीप रेट पे लोन्स दिए जा रहे हैं, जैसा कि ये था
कोरोना की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत कम किया गया, वर्ल्ड वाइड रिड्यूस किया गया था। अगर आपका वो बहुत रिड्यूस किया गया एंड यू एक्सपेक्ट इट वोंट स्टे हियर, तो आप फौरी तौर पे लोन लेकर कोई और असेट्स खरीद सकते हैं फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो है कि उसने इन द लॉन्ग रन वेल्थ, assets and resourcefulness of the organization उसे एनहांस करना है। ठीक है, रिसोर्सफुलनेस, उसके असेट्स कितने हैं। किसी भी वक्त जब स्टार्ट किया तो उसके अपने असेट्स क्या थे, शेयर होल्डर्स की मनी कितनी थी, अपने क्या थे। अब 5 साल के बाद, 7 साल के बाद बैंकों के कर्जे उतार कर अगर स्टेक होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद आपके पास या आपके शेयर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट, क्या उनको गेन मिला, ठीक है, क्या इंसेंटिव उनको मिला टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, तो आप उनके लिए भी रिवॉर्ड बनाने की। बट अगेन आफ्टर fulfilling all, you want to enhance the wealth and assets for the। अब गवर्नमेंट ऐलान करती है डिफरेंट पॉलिसीज का, या वो कर रही, तो अब बिजनेस मैनेजर इसमें क्या करेगा। बिजनेस मैनेजर इज सपोज टू रिमेन इन्फॉर्म अबाउट द फिस्कल एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन गवर्नमेंट साइड। टेकिंग प्लेस, बजट से पहले भी खबरें आती हैं, कई दफा अखबारों में रूमर्स, या लोग पहले ही कहीं से न किसी सोर्स से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो लीक हो जाती है, डाउन लीक्स या कोई और लीक्स, तो आपको इनको यू शुड रिमेन, या लोग ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढ के। अ बिजनेस मैनेजर शुड आल्सो एंटीसिपेट, एक है इस वक्त क्या है, आल्सो एंटीसिपेट द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन द टाइम्स टू कम। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट जा रही है उनको पता होना चाहिए बिजनेस मैनेजर को कि इनका कितना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक है तो उनकी टेन्योर कितनी गुजर गई, कितनी रह गई, इनके बाद इस पार्टी कौन सी गवर्नमेंट आने का अमकान है, एंड व्हाट यू एंटीसिपेट, व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी द एक्सपेक्टेड न्यू गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस। तो ये भी वो फोर्सी करे, क्योंकि प्लानिंग इज फॉर द फ्यूचर। आज चल रहा है, आज जो हो सकता है, आज जो आप गेन कर सकते हैं वो करें, लेकिन आप मुस्तकबिल पे भी नजर रखना होगी। ही शी, अब बिजनेस मैनेजर मेल फीमेल कोई भी हो, ही शी should make appraisal of the potential gains or benefits, their mechanism and magnitude possible for the fund। तो उसको उसका कैलकुलेशन, तखमीना ये क्या किया जाए, कहां से फायदा उठाया जा सकता है। अगर सब्सिडाइज लोन है तो लोन लेके उसका क्या किया जा सकता है, वो इन्वेस्ट कहाँ होगा, उससे कितना मुमकिन फायदा हो सकता है। अगर वो टैक्स फ्री जोन है तो वहां अगर आप फैक्ट्री शिफ्ट करते हैं तो उसके आपकी फर्म के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होगी, वहां लेबर का वेज रेट, लेबर कैजुअल जो लेनी है वो किस वेज पे मिलेगी। एक तो गवर्नमेंट का रेट है मिनिमम, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आम आप जिनको रेगुलर नहीं करते तो वो आपको कम वेज पे भी शायद मिल जाए। The manager should be competent, energetic, and dynamic enough to make right decisions and take appropriate, relevant actions promptly। ये मैनेजर की खूबी होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट, वो एंटीसिपेट, सही कैलकुलेशन, अगर उसने बीसीआर निकाला है तो सही कैलकुलेट किया हो, अगर उसने खबर ली है कहीं से तो वो सही, ये नहीं कैसे। तो कॉम्पिटेंट, एनर्जेटिक एंड डायनामिक
चेंजिंग हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते जाना, to make the right decision and take appropriate relevant action, क्योंकि wrong decision at any time, किसी भी वक्त अगर गलत फैसला करेंगे या right but delayed decision, वेले की नमाज एक वेले दिया टकरा, अगर आपने फैसला ठीक भी किया लेकिन वक्त गुजर गया हो, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चौकी थे। तो रॉन्ग डिसीजन एट एनी टाइम एंड राइट बट डिलेड डिसीजन कैन बोथ बी ड्रास्टिकली हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन बेनिफिटिंग इट। उसका फायदे की बजाय नुकसान ही होगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसका फायदा होने का इम्कान कम है। तो लिहाजा उसको विजिलेंट रहना चाहिए, उसको दाएं बाएं। इसीलिए वो लोग कहते थे पहले शुरू में क्या करते थे फार्मर को कि वो कीप बोथ आईज एंड हैंड, आईज इन द फील्ड एंड हैंड्स ऑन द प्लो। अब तो ट्रैक्टर आ गया, पहले हल होता था तो खेतों में नजर रखे, लेकिन अब कहते हैं नो, कीप योर आईज इन द मार्केट एंड योर हैंड्स ऑन द प्लो। आंखें आपकी मार्केट में इनपुट की क्या पोजीशन है, आउटपुट की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। क्योंकि पहले दौर में सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, अब सबसिस्टेंस नहीं है, अब कमर्शियल है। अब आप सीड भी खरीद रहे हैं, खाद भी खरीद रहे हैं। पहले सीड भी नहीं खरीदते थे, खाद भी नहीं खरीदते थे, पानी भी नहरी होता था, अब पानी भी ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल का पानी। तो ये सारी चीजें अब आप खरीद रहे हैं। जब खरीद रहे हैं तो आपको उनको बेचना है, तो आपको हर सीजन के एंड पे अपना नफा नुकसान देखना होगा। अगर नफा होगा तो फैमिली मेंबर्स के नए कपड़े बनेंगे, अगर नुकसान हुआ तो फिर तो शायद जेवर बेचकर या कोई प्लाट पड़ा है तो बेचकर डीलर की पेमेंट क्लियर करनी पड़े। तो लिहाजा आपको ऐसे ही यहाँ जो बिजनेस फर्म्स नॉन एग्रीकल्चरल हैं तो उनको भी मैनेजर शुड देयरफॉर मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू गेन इफ पॉसिबल। हर वक्त तो नहीं है, इफ पॉसिबल। इसलिए कहा कि उनका वो जायजा लेके अवेयरनेस हो और उसके बाद जायजा लेकर वो डिसीजन करे कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर मी। From the government policy of tax-free zones, tax rebates, reduced interest rate, subsidy on any capital items, etc. वही मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी पे, मशीनरी पे, ये आईटी का दौर आया तो गवर्नमेंट ने कंप्यूटर इंपोर्ट्स पे या कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स पे गवर्नमेंट ने वो उनको इंसेंटिव दिया कि भी ये ले आ जाए ताकि मुल्क के अंदर जो आईटी इसका दौरा हो जाए। तो उसमें बेनिफिट दिया गया लोगों को। ऐसे ही अगर दे रही है तो आप देखें, कैलकुलेट करें, एंड इफ इट इज रियली वर्थ तो उससे इस्तेफादा करें। एज अ रिजल्ट लॉन्ग रन असेट्स पब्लिक वेल्थ ऑफ द बिजनेस फर्म शुड इंक्रीज। सिमिलरली प्राइवेट पॉसिबल प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी should be thoroughly examined। कई दफा यहाँ पे ज़ियाउल हक के दौर में ये रोटी प्लांट भुट्टो साहब ने बनाया था एक, तो रोटी प्लांट के अंदर कुछ भी ना हो, मशीनरी को जंग लगा हुआ जो भी, लेकिन वो जो जगह इतनी महंगी कि लोगों ने कहा कि वो जो मशीनरी है वो लोहे में बेचने गया, लेकिन जगह इट इज वर्थ। तो वो ऑक्शन हो के, अगर वो आपको देखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो वहां से भी इस्तेफादा आप कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स शुड बी मटेरियलाइज्ड इफ पॉसिबल। तो जहां से आपको गेन हो सकता हो, और दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैनेजर कि जैसे उसने पहले कंपटीशन में अगर डिओपली है या ओलिगोपली है तो बिजनेस
जो मैनेजर है, a smart business manager will contact the other competitor, will invite them on a cup of tea. तो बिजनेस मैनेजर उनको इनवाइट करके उनको कन्विंस करेगा, लेट्स डिजाइन अ कॉमन प्राइस पॉलिसी, लेट अस safeguard our own interest. तो वो उनको एक तरफ लाएगा। और अगर जो बिजनेस स्पिरिट नहीं जिसमें, वो compete करना शुरू करेगा। जब compete करेगा, प्राइस कट्स, प्राइस वार शुरू हो जाए। जब प्राइस वार शुरू होगी तो who will be at loss, who will be the end loser? The business firms, वो लूज करेगी। तो आपको लिहाजा टेक्टफुली, इंटेलिजेंटली इनको देखकर आपने appropriate decision लेने हैं। Any question, boys and girls? Any question?